Any Yes, questions doctor. from the last question? Last lecture question. Okay, but, today uh, we will see the manufacturing or synthesis process of phosphoric acid. Uh, Generally, phosphoric acid is formed from its ore, means the ore which contains phosphoric content. Based on geological origins, there are two very famous phosphate ores. One is known as igneous, which is found in Kola, South Africa, Brazil. The next one is sedimentary, found in Morocco, Algeria, Jordan, USA, etc. The phosphate minerals, in case of both ores, are present in the form of an apatite group, and to be very specific, in the form of fluorapatite, which is represented by this chemical formula. If we are manufacturing phosphoric acid and we have a phosphorus ore containing phosphate minerals, if this ore has very low amount of phosphate minerals in it, then in that case we have to pass phosphate ore through a treatment process, which is usually known as concentration or beneficiation process. And through this process, we basically enhance the concentration of phosphate minerals in the ore by the removal of certain impurities. अगर कोई भी हम फॉस्फोरस और यूज करें और उसमें फॉस्फेट कंटेंट कम हो तो हमें उस और को किसी ट्रीटमेंट प्रोसेस में से पास करना पड़ता है जो जनरली कंसंट्रेशन या वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस और में फॉस्फेट कंटेंट को इंक्रीज करता है बाय रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल. Most commonly process for phosphoric acid synthesis is the dihydrate process. And in this process, the overall chemistry involved is that the phosphorus part of the ore is reacted with concentrated sulfuric acid. As a result, we get phosphoric acid and calcium sulfate. Calcium sulfate is insoluble and usually it is filtered out from phosphoric acid. Now, if we follow this route, first reaction, right, the phosphate mineral reacts directly with sulfuric acid. This reaction is self-limiting because calcium sulfate formed in this reaction, it, it deposits itself onto the particles of the rock or ore. As a result, sulfuric acid is unable to reach the phosphate content of the rock. So reaction stops there. The yield of conversion is very low. That is why this chemistry is not recommended or is not favorable. Rather, we basically dip phosphate rock in phosphoric acid. This phosphoric acid is recirculated continuously through the reactor. Because of the dipping of phosphate rock in phosphoric acid, we get an intermediate compound. And this intermediate compound is known as monocalcium phosphate. Then this monocalcium phosphate reacts with sulfuric acid to form phosphoric acid and calcium sulfate. Now, when
phosphoric acid reacts with the phosphate minerals to form monocalcium phosphate. This content is soluble in the acid. Now this phosphate content will not be in the form of solid particles. It will be as this intermediate compound is soluble in the medium, acidic medium. Then this liquid or soluble medium will react with sulfuric acid to form calcium sulfate and phosphoric acid. As a result, calcium sulfate will not stop the reaction as the phosphate content is now not in the form of solid part. Usually the process follow होता एक्सक्यूज है मी वो सर, सब वो डिस्टॉर्शन हो रही है काफी। यस सर। बॉडी कारण Yes, sir. सर आपकी तरफ से काफी नेटवर्क इशू है, आवाज सही नहीं आ रही। मेरा इंटरनेट तो यार भूल गया तो रोक दो सर। सर वो फिर ये भी होता है कि वो जब डिस्टॉर्शन होती है तो वो रिकॉर्डिंग में भी वैसे ही सेम टू सेम आता है, डिस्टॉर्शन ही आती है। अरे मैंने पंखे बंद कर दिए, लेट्स होप कि अब डिस्टॉर्शन नहीं होगी। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसेस for phosphoric acid manufacturing is dihydrate process. सर ये माइक की वजह से हो रही है। Okay, so in this process we basically made the phosphate containing rock react with sulfuric acid and as a result of this reaction phosphoric acid और calcium sulfate बनता है। calcium sulfate insoluble फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होता है, तो इसको हम फॉस्फोरिक एसिड से फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पहले रिएक्शन की केमिस्ट्री को फॉलो करते हैं तो ये रिएक्शन सेल्फ लिमिटिंग रिएक्शन होता है, खुद से रुक जाता है थोड़ी देर के बाद। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम सल्फेट होता है ये एक लेयर बना देता है जो और के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर। तो एक लेयर, इनसॉल्युबल लेयर कैल्शियम सल्फेट की इन ओस पार्टिकल पे बन जाती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फेट कंटेंट तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से फिर ये रिएक्शन नहीं होता और इस नेचर की वजह से जो कन्वर्जन ऑफ हील्ड प्रोसेस की वो बहुत कम होती है। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए हम फॉस्फेट रॉक को पहले फॉस्फोरिक एसिड में डिप करते हैं। इस रूट को फॉलो करने से क्या होता है कि ये दोनों कंपोनेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो एक इंटरमीडिएट सॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं जिसको मोनोकैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। क्योंकि ये सॉल्युबल कंपाउंड है तो अब फॉस्फेट कंटेंट जो रॉक का है वो सॉलिड पार्टिकल फॉर्म में नहीं है, वो एसिडिक मीडियम में सॉल्युबल फॉर्म में पड़ा हुआ है। फिर ये मोनोकैल्शियम फॉस्फेट रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिससे कैल्शियम सल्फेट और फॉस्फोरिक एसिड बनते हैं और इसको फिर हम बाद में थ्रू फिल्ट्रेशन सेपरेट कर लेते हैं। तो दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ द डाइहाइड्रेट प्रोसेस। नाउ टेम्परेचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। The temperature of this reactor in which these reactions are going to take place, and we basically select the temperature based on the final chemical structure of the calcium sulfate. So if we want to form calcium sulfate with 2 water molecules, the recommended temperature range is up to 100 degrees C. If we want to form calcium sulfate with half water molecule, then this is the region. And if we want to have anhydrous calcium sulfate, then this is the temperature range. This is dihydrate process. Temperature range is usually up to 100 degrees. That means the reaction temperature will be maximum up to 100 degrees. So in dihydrate process, these are the steps. General steps which takes place: grinding, reaction, filtration, gas scrubbing, and concentration. So some details are mentioned about each step in these slides. I will directly move on to the flow sheet. So this is the dihydrate process, manufacturing process. This is the dilution vessel in which we dilute sulfuric acid
with water up to the desired concentration. And this diluted sulfuric acid is added into the reactor, in which we also add phosphate rock, and from bottom we have circulated 36% phosphoric acid as well. Now the reactors, this block is basically showing the reactor series, which means there will be more than one reactor connected in series. So as I already told you, in order to distribute the material and energy load, and in order to avoid the one large size vessel, we basically divide material and energy load into multiple smaller vessels connected in series in order to have good control of the process. That is why here we have reactors which are connected in series. So as soon as phosphoric acid will come in contact with the phosphate rock, and then we will have sulfuric acid in the vessel as well. So this chemistry will be, yes. सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, रिकॉर्डिंग में फिर ऐसे ही आएगी। अब ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कैसा ना हो, बट ये चीज मेरे कंट्रोल में, क्योंकि आपकी आवाज आ रही है लेकिन कट कट के ना कोई चीज समझ आ रही है, कोई चीज नहीं आ रही। अब मैं फिक्र करूँ, अब कनेक्टिविटी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यही फैसिलिटीज हैं जो अवेलेबल, इसके अलावा और कुछ। So in the reactor, this chemistry will be followed, in which firstly, as I already explained, phosphate content will react with phosphoric acid to form an intermediate soluble monocalcium sulfate, monocalcium phosphate. Then this intermediate compound will react with sulfuric acid to form phosphoric acid and calcium sulfate. This chemistry will be followed here. Then the reaction is exothermic by nature, and in order to maintain the temperature of the reactor vessel, we take out a slurry out of from the reactor. We pass this slurry through a cooler. We reduce its temperature, and then we reintroduce this cold slurry back into the reactor. So in this way, we try to maintain the reactor temperature to the desired level. And what is that desired level? It is explained in this slide. If we want to have calcium sulfate with 2 water molecules, then this is the desired temperature range. And if we want to have calcium sulfate with half water molecule, then in this range. And if we want to have anhydrous calcium sulfate, then this is the range. So this is dihydrate process. That means this range is the required range. And to be very specific, the reactor temperature is up to 70 to 80 degrees. So the cooler will ensure the desired level of temperature in the reactor vessel. As we cool down the this slurry which is taken out from the reactor, some of the gases which were present in this slurry, because of this cooling action, they will also be separated from this slurry. And then these gases are separated from the slurry which is introduced into the reactor. And then this slurry, as it can have harmful compounds, this gaseous stream, as it can have harmful compounds, we send it to the treatment section, which is a scrubbing section. And in this scrubbing section, we basically introduce a solvent which will dissolve all the undesired compounds and will convert these gaseous compounds into a liquid state. And this liquid is sent towards the waste treatment section. While the gases which were unable to be captured in the solvent, they leave the scrubber from the top through vent directly into the atmosphere. Okay, so एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से कि ये डाइल्यूशन वेसल है जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर से डाइल्यूट करते हैं अप टू द डिजायर्ड लेवल.
जब भी आप कंसंट्रेटेड एसिड और वाटर का रिएक्शन होगा, इट विल ऑलवेज बी एक्सोथर्मिक. So in order to avoid the mist formation, or in order to control the temperature of this dilution vessel, we continuously circulate a cooling medium which will control the temperature of this dilution vessel. So sulfuric acid of desired concentration from this dilution vessel, it goes into the reactors, and from the other side हम phosphate rock introduce कराते हैं, and from another end हम phosphoric acid जो recirculated phosphoric acid है उसको introduce करवाते हैं. तीनों रिएक्टेंट्स जो है वो हमारे रिएक्टर्स में ऐड होते हैं. रिएक्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिएक्टर सीरीज लिखा हुआ है. रिएक्टर सीरीज का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रिएक्टर्स विल बी कनेक्टेड इन सीरीज. ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रादर के हमारे पास एक लार्ज वेसल हो, हम वही मटेरियल और एनर्जी लोड एक लार्ज वेसल की बजाय मल्टीपल स्मॉल वेसल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो सीरीज में कनेक्टेड होती है. क्योंकि स्मॉलर साइज को हैंडल करना आसान है, कंट्रोल करना आसान है, और लार्जर साइज को हैंडल करना, कंट्रोल करना मुश्किल होता है. इसलिए रिएक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज है. thirdly, जो रिएक्शन अंदर हो रहे होते हैं, मैंने पहले स्लाइड्स में आपको दिखाए, दिस वन एक्सोथर्मिक होते हैं और रिएक्टर का टेम्परेचर इससे बढ़ता है. रिएक्टर के टेम्परेचर को आपने किस वैल्यू पे, किस रेंज में रखना है, वो इस ग्राफ में एक्सप्लेन है. क्योंकि ये डाइहाइड्रेट प्रोसेस है जिसमें कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनना चाहिए, तो टेम्परेचर डिजायर्ड रेंज ये वाली. तो यूजुअली 70 to 80 डिग्री सी टेम्परेचर रेंज होती है जो हमने मेंटेन करनी है. उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन दीज रिएक्टर्स हम रिएक्टर से एक स्लरी बाहर निकालते हैं, तो एक कूलर में से पास करते हैं, कूल डाउन करते हैं और वापस रिएक्टर में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं. तो इस स्लरी की सर्कुलेशन से रिएक्टर का टेम्परेचर कंट्रोल होता है. जब रिएक्शन होता है तो कुछ गैसियस कंपाउंड बनते हैं जो कि डिजायर्ड या रिक्वायर्ड नहीं है, बट क्योंकि और है, रॉक की कंपोजिशन बड़ी हेट्रोजीनियस होती है, कंट्रोल नहीं की जा सकती है ज्यादा, नेचुरली वो अवेलेबल जैसी होती है नेचर में, उसको वैसे यूज करते हैं. तो कुछ गैसियस कंपाउंड बनते हैं. उन गैसियस कंपाउंड जब हम स्लरी को कूलर में से पास करते हैं तो वो गैसेस जो है वो इस स्लरी से सेपरेट हो जाती है. उन गैसेस को एज इट इज हम एनवायरनमेंट में नहीं भेज सकते, इसलिए उसको स्क्रबिंग सेक्शन में भेजते हैं, विच इज सॉर्ट ऑफ अ गैस ट्रीटमेंट सेक्शन. इस स्क्रबर में हम एक सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं. वो सॉल्वेंट जो हार्मफुल गैसियस कंपोनेंट होते हैं उनको डिसॉल्व कर लेता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है. तो उस लिक्विड को हम वेस्ट ट्रीटमेंट सेक्शन में भेज देते हैं. और जो गैसेस अब्सॉर्ब नहीं हो पाती सॉल्वेंट में, वो स्क्रबिंग सेक्शन के टॉप से थ्रू वेंट डायरेक्टली इनटू एटमॉस्फेयर चली जाती है. तो जो गैसियस कंपाउंड हो सकते हैं वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो सकता है, वो फ्लोरोसिलिक एसिड हो सकता है जैसे H2SiF6, और वो SiF4 भी हो सकता है. तो ये वो गैसियस कंपाउंड है जो कि बन सकते हैं रिएक्शन वेसल में, और इनको हम एज इट इज इन्वायरमेंट में नहीं भेज सकते क्योंकि स्पेशली HF और फ्लोरोसिलिक एसिड दे आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स. तो अगर दे आर डायरेक्टली added into the atmosphere, they will cause a lot of problems. That is why the gaseous stream from the reactors through coolers goes into the scrubbing section, where we try to capture these compounds from the gaseous stream and we basically convert them into a liquid stream. And then that liquid stream is sent into the waste treatment section through this line. The product withdrawn from the reactor in series, they are passed through a filter, and basically at this point we will have two components in this stream, phosphoric acid and calcium sulfate. Calcium sulfate dihydrate form में it is being retained on the filter as it is a solid compound, while phosphoric acid as it is in liquid state, it passes through the filter which is sent into the evaporation section, and part of the phosphoric acid is sent back into the reactors for circulation purposes.
So phosphoric acid form as per this process is at this moment is 36% concentrated. It is sent into the evaporators where we basically heat 36% phosphoric acid. As a result, water vaporizes and the concentration of phosphoric acid in the solution increases. So after the evaporation, we get concentrated phosphoric acid, which is up to 78% concentrated. Then we pass this concentrated phosphoric acid through a heat exchanger. We reduce its temperature to normal environmental condition. And after passing it through the heat exchanger, we basically send it towards the warehouse or storage section. At this moment, this phosphoric acid has 78% concentration. In order to perform evaporation, we need to have a heating medium. So that heating medium is provided through this mechanism to the evaporator section, and the vapors of water which are coming out from the evaporators. Initially, they are cooled down and they are sent back towards the filter in order to, if they have some amount of phosphoric acid, so those vapors of phosphoric acid can be reclaimed from this stream. So that is why this vapor stream is cooled down and it is reintroduced into the filtration section. मेरी जो प्रोडक्ट स्ट्रीम हमें रिएक्टर से मिलती है उसमें मेनली फॉस्फोरिक एसिड और कैल्शियम सल्फेट होते हैं. कैल्शियम सल्फेट प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में है, सॉलिड है, वो फिल्टर पे रिटेन हो जाएगा. फॉस्फोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में है, वो फिल्टर आउट हो जाएगा. तो हम जो 36% फॉस्फोरिक एसिड बनता है उसको इवेपोरेशन सेक्शन में भेजते हैं और पार्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड को रिसर्कुलेशन के लिए रिएक्टर में भेज देते हैं. जो 36% फॉस्फोरिक एसिड है, दिस इज वेरी लो कंसेंट्रेशन. हम इसकी कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस को यूज करते हैं. 36% फॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हीटिंग मीडियम, जिससे इसमें मौजूद वाटर वेपोराइज होगा और फॉस्फोरिक एसिड की सोल्यूशन में कंसेंट्रेशन बढ़ेगी. यूजुअली जो रिक्वायर्ड अमाउंट कंसेंट्रेशन है वो 78% फॉस्फोरिक एसिड है. 78% कंसेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड इवेपोरेटर्स में से आता है, वो कूलर में से पास करते हैं, नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशंस तक कूल करते हैं और फिर उसको इस लाइन के थ्रू स्टोरेज या वेयर हाउस में भेजते हैं. तो वाटर वेपराइज होता है, उसमें चांसेस है कि फॉस्फोरिक एसिड वेपर्स हो सकते हैं. हम इस स्ट्रीम को जो वाटर वेपर्स के कूल डाउन करते हैं और इसको वापस फिल्ट्रेशन सेक्शन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि अगर इस स्ट्रीम में कुछ कुछ फॉस्फोरिक एसिड कंटेंट ट्रैप है, हम उसको सेपरेट कर सकें. So this is the whole process for the manufacturing of phosphoric acid. If you guys have any questions, please ask. सर एक दफा बताइएगा ये CW क्या है इवेपोरेटर के ऊपर? कूलिंग वाटर. थैंक यू सर. जी कोई और क्वेश्चन? सर ये इवेपोरेटर से फिल्टर पे दोबारा क्यों जा रही है स्टीम में? क्योंकि इवेपोरेशन में हम क्या होगा कि फॉस्फोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे बाय रिमूविंग द वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन दिस फॉस्फोरिक एसिड. ना 36% है, इसका मतलब है 64% वाटर होगा, तो उस वाटर को रिमूव करेंगे, सोल्यूशन में फॉस्फोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी. ठीक है, और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली 78% कंसेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड चाहिए. हम उसको इवेपोरेशन सेक्शन में से पास करते हैं जिससे वाटर वेपोराइज होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है. अब चांसेस ये हैं कि इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी इंट्रैप हो सकता है. तो जो इंट्रैप्ड फॉस्फोरिक एसिड है इन वाटर वेपर्स, उसको रिक्लेम करने के लिए हम इस स्ट्रीम को कूल करते हैं और वापस से फिल्ट्रेशन सेक्शन में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि अगर इसके अंदर कुछ फॉस्फोरिक एसिड है तो हम उसको कैच कर सकें. कोई और क्वेश्चन? सर ये डाइल्यूशन वेसल में CW जहाँ पे भी शोर है, दैट मींस कूलिंग वाटर.
और जब भी आप सर ये जो फिल्टर से रिएक्टर जब भी आप कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे तो वो एक्सोथर्मिक होगा, और एक्सोथर्मिक हीट को अगर आप रिमूव नहीं करते तो वो वेपोराइज कर देगा एसिड। इसलिए इस डाइल्यूशन वेसल को हम कंटिन्यूसली कूल करते रहते हैं ताकि लिक्विड स्टेट में एसिड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये जो फिल्टर से रिएक्टर में H3PO4 जा रही है, H3PO4 कहाँ से आ रहा है? जो रिएक्टर में बन रहा है। ओके ठीक है। और सर सर ये प्लेट हीट एक्सचेंजर में CW क्यों लगाया है सर? कूलिंग वाटर है ना, हीट एक्सचेंजर का मैंने आपको बताया था कि हीट एक्सचेंजर में दो फ्लोइंग जोन होते हैं। एक जोन में फॉसर स्टीम होती है और दूसरे जोन में यूटिलिटी स्टीम होती है। तो ये आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं और जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमें चाहिए होता है उस रिक्वायर्ड टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं। तो ये एक स्टीम है जो डाइल्यूशन वेसल में फॉर एग्जांपल जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके इस वेसल में से बाहर आती है। जब ये डाइल्यूशन वेसल में से वाटर एसिड मिक्सिंग से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको एब्जॉर्ब करती है तो डाइल्यूशन वेसल का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। मगर जब ये डाइल्यूशन वेसल से खुद बाहर आती है तो इसका अपना टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसके अपने टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए के लिए हम एक्सचेंजर की दूसरी साइड पे कूलिंग वाटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कूलिंग वाटर इस स्टीम के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है और जब वो इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है तो इस स्टीम को हम रीयूज कर लेते हैं दोबारा डाइल्यूशन वेसल में, और कूलिंग वाटर का अपना टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसको हम कूलिंग टावर्स में भेज के दोबारा से मेंटेन करते हैं। इस तरह से ये आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे होते हैं और जब प्रोसेस है उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा होता है। सर लेकिन ये प्रोडक्ट एसिड पर इसको क्या जरूरत है सर, ये CW को? यहाँ तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं है सर, यहाँ पर एक्सचेंज के लिए क्या जरूरत है सर, हीट एक्सचेंजर के लिए? लगता है ध्यान से नहीं सुना लेक्चर। जब भी एसिड में वाटर को मिक्स करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, इस वेसल में हीट प्रोड्यूस होगी। अगर उस हीट को रिमूव नहीं करेंगे तो एसिड लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो वेपर या मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फेवरेबल नहीं होता। तो एसिड को वाटर में मिक्स करने के बाद लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए जरूरी है कि जो मिक्सिंग से हीट प्रोड्यूस हो उसको इस वेसल में से रिमूव करें। उस हीट को वेसल में से रिमूव करने के लिए ये स्टीम उस हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाती है, खुद गर्म हो जाती है। क्योंकि इसको ठंडी फॉर्म में हमने दोबारा से रीयूज करना है इसलिए इसकी हीट को हम कूलिंग वाटर में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे ये स्टीम कूल डाउन होती है और दोबारा वेसल में से हीट एब्जॉर्ब करके बाहर आती है और उस तरह सर्कुलेट करती रहती है और उसके टेम्परेचर को हम CW कूलिंग वाटर से बार बार मेंटेन कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं। सर मतलब इन सिंपल हम जब ये कहते हैं कि एसिड और वाटर को जब मिक्स करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तब हम आगे फिर हीट एक्सचेंजर में वो कूलिंग वाटर यूज करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। जी सर ये जो हम फिल्टर में से वाटर में से सेपरेट करें फॉस्फोरिक एसिड तो फिल्टर में वाटर रिटेन हो जाएगा? दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा। जब हम फिल्टर में से इवेपोरेटर में से ऊपर पानी भेज रहे हैं जिसमें फॉस्फोरिक एसिड है तो जब फॉस्फोरिक एसिड उसमें से सेपरेट हो जाएगा तो फिल्टर पे वाटर रिटेन हो जाएगा? ये वाटर जो हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं उसकी बात करूंगा जी, तो ये फिल्टर में रह जाएगा जब सेपरेट होंगे? ये फिल्टर में नहीं रहेगा, ये फिल्टरिंग क्योंकि लिक्विड है, फिल्टर पे जो चीज रिटेन होगी वो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ना जो कैल्शियम सल्फेट के, तो ये फॉस्फोरिक एसिड के साथ ही वापस आएगा और
इसकी अक्यूमुलेशन को अवॉइड करने के लिए हमने इवेपोरेटर में कुलाइंग की होगी, जहाँ से ये एक्सेसिव वाटर रिमूव होता जाए। सर ये फ्लोशीट हमारे पास बीएफटी है या पीएफटी? ये बेसिकली लॉग फ्लो डायग्राम। क्लास कोई और क्वेश्चन? सर ये नीचे जो डायग्राम के है सर, वो प्लेट हीट एक्सचेंजर, सर यहाँ पर तो रिएक्शन भी नहीं होता, वाटर भी रिमूव किया है एवापोरेटर के जरिए सर, फिर यहाँ पर ये CW क्यों लगाया हुआ है सर? ये जो 78% H2PO4 हमें देता है यहाँ पर। इवेपोरेटर में आपको वाटर को रिमूव करने के लिए जो लिक्विड वाटर है उसको वेपर वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिक्विड वाटर वेपर वाटर में फॉर्म में तभी कन्वर्ट होगा जब आप उसको हीट करेंगे। तो मतलब है इवेपोरेटर से जो एसिड की स्ट्रीम बाहर आ रही होगी वो हीटेड होगी, उसका टेम्परेचर हाई होगा देन दी नॉर्मल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। तो हम इस एसिड को जो इवेपोरेटर में से आ रहा है जो हीटेड है उसका टेम्परेचर नॉर्मल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे लाने के लिए उसको एक हीट एक्सचेंजर में से पास करते हैं, जिसमें हम कूलिंग वाटर यूज करते हैं। कूलिंग वाटर इस हीटेड एसिड के टेम्परेचर को रिड्यूस करके नॉर्मल वैल्यूज पे लाता है और खुद हीटअप हो जाता है, जिसको हम कूलिंग टावर में भेज के दोबारा से मेंटेन करते हैं। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जी कोई और क्वेश्चन? सर एक्सक्यूज मी सर, ये पूछें। सर वो जैसे आपने कहा कि लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो वाटर जब हम प्यूरिफाई करते हैं हीट एक्सचेंजर एज अ कूलिंग पर्पस यूज़ करने के लिए, एक तो मतलब क्लोज सर्किट होता है जिसमें वाटर प्योर वाटर कंटिन्यूसली, जिसमें हम कोई एसिड या कोई वो केमिकल्स मिक्स करते हैं एज अ कूलिंग पर्पस यूज़ करते हैं, और दूसरा जो ये होता है कि हम एनोड और कैथोड के जरिए उसको गुजारते हैं ताकि उसमें जो सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं वो एनोड और कैथोड पे हो जाए ताकि वाटर प्यूरिफाई होता है। तो सर इसमें कौन सा ऊपर यूज होता है? कूलिंग वाटर जो है ना वो डिपेंड करता है वाटर जिसको आपने कूलिंग वाटर में कन्वर्ट करना है उसका सोर्स क्या है, वो वाटर आप कहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं ना। यस सर, तो यहाँ ये जो वाटर का प्रोसेस है इसमें क्लोज सर्किट आपको मेरी बात खोलो ना, जब आपको वाटर का सोर्स पता चलेगा ना, जब मैंने वो वाटर ट्रीटमेंट वाला टॉपिक पढ़ाया था, जब आपको वाटर का सोर्स पता चलेगा तभी आपको ये समझ आएगी कि इसमें इम्प्योरिटीज कौन सी हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आप उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस डिवाइस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर के पानी को देखेंगे और फैसलाबाद के पानी को देखेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो जो फैसलाबाद में वाले सोर्स वाटर के लिए जो आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा वो लाहौर वाले वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस से कम्प्लीटली डिफरेंट होना है। तो ये क्लोज सर्किट में ही मूव करता है, मगर वो ट्रीटमेंट कौन कौन से है वो वाटर का सोर्स आपको बताएगा ना, या वाटर में जो सोर्स के अकॉर्डिंगली जो इम्प्योरिटीज है उन्होंने बताना है, फिर आपने अपना प्रोसेस डिवाइस। सर अगर फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल सी वाटर लें उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज होगा? सही बात, नॉर्मल सी वाटर में सॉल्ट्स बहुत ज्यादा है। यस सर। तो आमतौर पर सी वाटर यूज ही नहीं करते, कंसंट्रेशन ही बहुत ज्यादा है सॉल्ट। आप जमीन का पानी जो हम बोर करके निकालते हैं या दरिया का या किसी नहर के पानी को इस्तेमाल, क्योंकि उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन, सॉल्युबल सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होती है और इनसॉल्युबल सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब हो सकता है ना कहीं पे किसी सोर्स में वाटर जो है वो हार्ड वाटर हो,
तो आपको हार्डनेस रिमूविंग मैकेनिज्म ऐड करना पड़ेगा। इसी सोर्स के वाटर में हो सकता है हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट ना हो मगर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हो, मट्टी हो, डर्ट हो, तो आपको उसका ट्रीटमेंट सेक्शन अलग से बनाना पड़ेगा। तो हम कोई जनरलाइज बात नहीं कर सकते कि यार इस वाटर को इस ट्रीटमेंट में से गुजार नहीं। जब वाटर आएगा तो एनालाइज करेंगे और फिर उसका ट्रीटमेंट सेक्शन बता पाएंगे। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? क्लास, एनी अदर क्वेश्चन? If not, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव सकते हैं। स्लाइड शेयर्ड है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Okay, the next basis is the nitric acid, and commonly it is used as a laboratory reagent. Other than laboratory reagent, it is also used in the manufacturing of some explosives like nitroglycerin and trinitrotoluene, as well as in the synthesis of fertilizers such as ammonium nitrate. It has a very important use in metallurgical and refining field because it can form a solution when combined with HCl hydrochloric acid, which is known as aqua regia. And this solution has the ability to dissolve precious metals like gold and platinum from their ores, from their sources. Nitric acid is also a very powerful oxidizing agent, and when it combines with compounds such as cyanides, carbides, metallic powders, then this reaction can be very explosive. So we can use it as laboratory reagent in the synthesis of explosive fertilizer or the extraction of precious metal like gold and platinum as an oxidizing agent. And whenever we want to have explosive reactions, then we can also use nitric acid with combination in cyanides, carbides, and metallic powders. So it has very vast applications, and that is why its synthesis is very important. There are two methods through which we can produce nitric acid. The first method involves oxidation, condensation, and absorption processes, and it produces a weak nitric acid because this nitric acid has a low concentration, which can vary between 30 to 70%. The second method uses dehydration, bleaching, condensation, and absorption process, and it forms a highly concentrated nitric acid whose concentration is greater than 90%. And usually the second method uses weak nitric acid produced in the first method as a reactant or as a raw material. तो जो पहला मेथड है उससे वीक या वीकली कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, 30 से 70% तक रेंज होती है कंसंट्रेशन की। जो सेकंड मेथड होता है उसमें ग्रेटर देन 90% कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और सेकंड मेथड में जो रॉ मटेरियल होता है वो फर्स्ट मेथड का ही वीक नाइट्रिक एसिड होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट डिमांड whether they require a weak nitric acid or they require a highly concentrated nitric acid. Accordingly, one of the process can be used. These are the key steps involved in the weak nitric acid manufacturing: ammonia oxidation, and nitric oxide oxidation, and then absorption. So details are mentioned about each step in the slides. So I will directly go to the flow sheet of the process. This is the ammonia source and this is the air source.
From these two lines, ammonia and air goes into the ammonia oxidation reactor. This is the ammonia oxidation reactor, right? It has two sections. One section is this one, which is separated by this dashed line. One section is this one, and the other section is this one. Okay? So firstly, let's talk about this upper section, which is the reaction section. And we are entering ammonia and air through this line into this reaction section. Okay. So ammonia reacts with air or oxygen part of the air at a temperature between 1380 to 1470 degree Fahrenheit, and in the presence of a catalyst. Okay. So when ammonia and oxygen combines at this temperature range and in presence of a catalyst, it follows the first reaction, in which ammonia is oxidized to NO, nitric oxide, and water. Simultaneously, some side reactions can also take place, which are shown in these reaction, in which ammonia can be oxidized to nitrogen, or it can be oxidized to nitrous oxide. And in both cases, water will also be formed. So if we have good control on the reaction or reactor temperature, then the yield or the selectivity of this process will be very high. That means the reactants will follow the first reaction. If we have poor control on the reaction, then the reactants will follow the undesired reactions, which are reactions number 2 and 3. The catalyst used in this reactor is composed of platinum and rhodium. 90% platinum and 10% rhodium. So in presence of this catalytic mixture, the first reaction, or if we have poor control, then second and third reactions take place. Now this catalyst is present in the form of a wire gauze. I hope you have seen wire gauze in your chemistry labs. Okay. So under these conditions, the reactant reacts to form nitric oxide, and in order to have high selectivity, we need to have higher catalyst temperature. And if we have low temperature in the reactor, lower than this range, then we will have more side reactions than the desired reaction. So the objective is to have high temperature in order to have maximum yield or conversion of the reactant. Okay. So ammonia and air comes into the reaction section of this reactor. You can see a mesh here, which is representing catalyst. So here the reactions take place, and if we are controlling the reaction temperature with very high efficiency, so we can have 93 to 98% yield here. अगर हमने टेम्परेचर बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ तो यहाँ पे हम 93 to 98% तक यील्ड ले सकते हैं. अगर टेम्परेचर अच्छा कंट्रोल नहीं किया हुआ, वो रेंज से लो है, then the yield will be very low. So the reaction is highly exothermic, and the product streams leave the reaction section of this reactor at approximately 800 degrees C, and then they enter into the next section of the, or the bottom section of the reactor, which is basically a heat exchange network. रिएक्शन करने के बाद हमारी प्रोडक्ट स्ट्रीम है वो 800 डिग्री सी पर रिएक्शन सेक्शन को लीव करती हैं और रिएक्टर के बॉटम सेक्शन में एंटर होती हैं, विच इज दिस वन. एंड ये एक हीट एक्सचेंज नेटवर्क होता है जिसमें हम
जो भी एनर्जी है इस प्रोसेस स्ट्रीम की, उसको यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले ये प्रोसेस स्ट्रीम एक हीट एक्सचेंजर में से पास होती है, इसको हम सुपर हीटर कहते हैं। और इस सुपर हीटिंग सेक्शन में द एनर्जी ऑफ दिस प्रोसेस स्ट्रीम इज ट्रांसफर्ड इनटू वाटर एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू ए स्टीम, हाई एनर्जी वैल्यू स्टीम, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। आफ्टर गिविंग some of its energy in the superheating section, process stream enters into a heat recovery boiler. Again, इसमें जो रिमेनिंग एनर्जी होती है प्रोसेस स्ट्रीम की, वो हम वाटर में ऐड करते हैं, और वाटर से ऑफ कोर्स हमें स्टीम भी मिलती है, और उस स्टीम से वो हम किसी और यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक टरबाइन में एंटर करके टरबाइन चला के गेन कर सकते हैं। और जो प्रोसेस स्टीम है वो इन टू सेक्शन से अपनी हीट एक्सचेंज करने के बाद इट लीड्स द कन्वर्टर फ्रॉम दी बॉटम, कन्वर्टर को बॉटम से लीड करती है। इस पॉइंट से वाटर स्ट्रीम आती है। ये वाटर स्ट्रीम पहले इस रिकवरी सेक्शन से गुजरेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम, एंड दैट स्टीम विल पास थ्रू दिस सुपर हीटर where further energy will be added into the steam, and then this high energy steam is sent into the turbine section where it will run the turbine. Turbine chalegi to electricity will be produced, and this steam will be condensed into water, and the same water is circulated into these हीट एक्सचेंज नेटवर्क सेक्शन ऑफ द रिएक्टर। इस तरह से ये लूप घूमता जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती जाएगी, प्रोडक्ट स्ट्रीम भी कूल डाउन होती जाएगी। तो इस लूप से रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन? क्लास, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लूप? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। क्लियर है ये वाला? सर ये टरबाइन के बाद जो पास होने मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, उसके बाद क्या आगे समझ नहीं आई थी। देखिए, जब जो स्टीम है जब वो टरबाइन को रन करेगी, टरबाइन में बेसिकली ब्लेड्स लगी होती है ना, जिन्होंने सर्कुलेट करना होता है, वेन्स, जैसे पंखे की वेन्स हमारे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जब स्टीम अपनी एनर्जी टरबाइन में ट्रांसफर कर देगी या किसी मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफर कर देगी, तो खुद उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। जब उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म। इसको फ्लो शीट में वो वाटर कंडेंसेट कह रहा है, ठीक है। तो ये वही वाटर है जो पहले स्टीम की फॉर्म में अवेलेबल था। अब क्योंकि स्टीम ने एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, उधर उसका एनर्जी कंटेंट कम हो गया है, तो अब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो। तो इसी लिक्विड वाटर को हम दोबारा से रिएक्टर में भेजते हैं, जहाँ से ये एनर्जी गेन करता है, पहले रिकवरी सेक्शन से, फिर सुपर हीटिंग सेक्शन से, और इसी वाटर को हम एक सुपर हीटेड स्टीम में या हाई एनर्जी वैल्यू स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, जो वापस टरबाइन में ही आती है, दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो कंडेंस होती है, और इस तरह ये लूप चलता रहता है। ओके सर। जी, कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? No, sir. नो सर।
ओके, फिर सीआर से रिक्वेस्ट है अटेंडेंस मार्क कर लें।